Hello and welcome to the Ed Sampo. My name is Abhishek Tiwari and I have appeared to UPSC interviews, currently pursuing MBA from IIM Sambalpur. So, so it is general tendency that most of the time we start mugging up PYQ and then we expect that we will be doing something good. And aspirants have been doing for last 4 to 5 years doing so, and they are not able to create the results. The reason being, we don't need to mug up the PYQ. Basically, we need to analyze and find out the pattern. See, without disregard to any state pieces exam, the nature of UPSC prelims exam is very much different. It requires more analytical aptitude, right? So therefore, you need to analyze the PYQ, dig out the pattern, find out the probable areas, and read the mindset of the examiner. Okay, so through this presentation, I will be explaining you how you should be using PYQ and how you should be analyzing to discover certain patterns to help you to increase your chances in this exam, right? Okay, so before whatever the PYQ you are going to analyze, first and foremost thing, you have to have very strong command over basic books as per the demand of UPSC syllabus. If you are not having command over the basic books, trust me, you are not going to crack this prelims exam. That is the reality, because these days you can see the current affair is coming from anywhere and I don't know what is its exact source. So we should be relying more upon the basic books, basic concepts rather than the current affairs. And the advantage of having command over the basic book is that if question is coming in front of you and you are totally blank about the question, chances are that others are also in the same boat. And that is how you will analyze the complexity of the exam, okay? And so that you can take the calculated risk if at all it's possible, if it is required, and or if you are at the margin, then you should be taking risk, okay? So once you have the command or the basic books, then you should go through the PYQ analysis, try over it and see something what you can find out if you can read the examiner's mindset, right? So however, I mean, one may say that in 2003 column matching questions, no one was able to predict it, although some Tismar Khans are there in the market who told that we were able to predict it, but actually they were not. Okay, so so just leave them apart, and that is just an exception. Okay, so PYQ must be analyzed so that you can read the examiner's mindset, so that you can dig out some probable areas, so that you can read how the questions are framed, how the statements are organized, okay, how you can come closer to the correct answer. Okay, so this was the last year question you can see, and UPSC tried its best to eliminate the elimination techniques game. And you can see on the nature of the question that four options were given on two columns, and you have to see to what extent how many number of options were correctly matched. So it was very challenging. So for this kind of question, advice is that you attempt it only when you have uh, uh, I mean, at least 90% information that that whatever is columns are matched, are correct or no. Okay, so but the usually these types of questions were majorly of 45%. I mean, 45 questions were there out of 155 questions were traditional in nature. So you see, let's say you are not attempting these questions, and 55 questions are there, and you are able to correct, let's say, 45 questions. So you will be scoring around 85 or 90, right? Taking negative marking and all. That's, so even with a score of this 85, you will be able to crack this prelims exam. I guess cutoff is 75 this year. So so that is how you should be approaching this paper. So when it comes to these questions like this, you should be very cautious and see, only attempt these questions only if you are pretty sure that yes, that this is correct or this is wrong. Okay, so with respect to the rest of the 55 questions, you should be following the traditional approach, right? So this is not T20 game that you have to hit every ball. After all, this is test game, test match. So you should know which balls to leave, which balls to attempt, and which balls to be sent up to the boundary, right? So I just want to give you some example, right? If you can see the question in 2016 and how you would have been able to predict had you gone to the PYQ analysis.
So see the question, with reference to the religious history of India, consider the following statement. This is question of 2016. Now the next statement is, the concept of bodhisattva is central to Hinayana sect of Buddhism. Now the sect, I mean question is from sects. Come to the 2017. With reference to the religious history of India, consider the following statement. मतलब एग्जामिनर ने जरा मेहनत भी नहीं की, डिट्टो क्वेश्चन को उठा लिया है. द ओनली थिंग ही चेंज्ड, यहाँ पर हीनयाना सेक्ट था और बुद्धिज्म से यहाँ पर जैनिज्म आ गया. अब इतना तो करना पड़ेगा, क्वेश्चन तो रिपीट होता नहीं यहाँ पर. सो यू सी, सो नाउ इस क्वेश्चन को कैसे गेस करना है. इस क्वेश्चन को गेस करने का तरीका ये है कि अच्छा, यूपीएससी ने इस बार सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछा है, अगले साल क्वेश्चन सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म से आ सकता है. सो दैट इज हाउ यू कैन प्रेडिक्ट समथिंग. ओके, एंड इन 2016, in 2017 prelim, before writing, I revisited the 2016 PYQ, and just then back then I predicted okay कि sects of Buddhism क्वेश्चन पूछा, हो सकता है इस बार sects of Jainism का आ जाए. तो मैंने जस्ट 2 और 3 मिनट्स में इसकी थ्योरी पढ़ी और नेक्स्ट प्रीलिम्स के दिन ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल पे था, एंड यू कैन नॉट इमेजिन द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इट गेव मी. ओके, सो one more question I predicted about the mapping. So based upon few years back there was a question that लक्षद्वीप से कुछ मालदीव्स का कनेक्ट कौन सा आइलैंड होता है. तो आई प्रेडिक्टेड कि हो सकता है दिस टाइम अंडमान निकोबार से कुछ पूछ दे और कौन सा वो इंडोनेशिया से होता है, एंड दैट वाज द क्वेश्चन 2017. सो यू इमेजिन आप क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर रहे हैं और वो क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल पे आ जाता है, कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. और कुछ मतलब कि इस टाइप का फील आपको भी आ सकता है, कभी कभी लगता है कि आप मुझे भगवान है, इस टाइप का फील आ सकता है. So now the next thing is that target the most repeated statement. So most repeated statement को target करने का मतलब ये है कि कोई क्वेश्चन आपने रीड किया, लेट्स से क्वेश्चन है which of the following is और famous for the sun temples, 2017 क्वेश्चन है. 1 2 3 कुछ स्टेटमेंट्स, अरसावली, अमरकंटक, ओमकारेश्वर, एकदम ब्लैंक, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है. बट मैं यहाँ पर ये फोकस करना चाहता हूँ, ए में 1 दिया है, बी में 2 3 दिया है और सी में 1 और 3 दिया हुआ है, राइट, और डी में 1 2 3 दिया हुआ है. यहाँ पर अगर हम 3 किसी तरह से पकड़ लें कि अगर 3 मेरा गलत है तो अपने आप बी सी डी गलत हो जाएगा, या कहीं से मैं 1 पकड़ लूँ तो 1 गलत हो जाएगा तो मेरा बी करेक्ट हो जाएगा, राइट. सो वी शुड पिक अप दैट स्टेटमेंट कि जिसको प्रूव या डिस्प्रूव करने से हमारे बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं. तो बाकी फिर स्टेटमेंट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट. सो दैट इज हाउ वी शुड अप्रोच इट. एंड फॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट 3 है दैट ओमकारेश्वर, दैट इज रॉन्ग. तो जैसे ही 3 हमें पता चला रॉन्ग है तो आंसर वी आर लेफ्ट विद ओनली, तो 3 गलत तो डी गया, सी गया और बी गया. नाउ केवल 1 इज देयर, right. Now the next is target extreme words. So go by the norm rather than exception. And why I'm saying it, the reason being 2019 में क्वेश्चन आया था ओनली से लेकर के, और वो क्वेश्चन क्या था कि करेक्ट था. जनरली हम लोग एक्सट्रीम वर्ड्स के क्वेश्चंस को इनकरेक्ट मान लेते हैं जनरली. द रीजन बीइंग कि पीवाईक्यू में ऐसा रहा है एक पैटर्न ऐसा, देयरफॉर वी अज्यूम इट दैट इनकरेक्ट. सो आज भी हमें मानना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन अगर आ गया तो हम बोल दें कि नहीं अब नहीं ऐसा करेंगे. सी, ये एक्सेप्शन है, एन एक्सेप्शन कैन नॉट बी नॉर्म. कोई भी कुछ बोले कोचिंग वाला कि नहीं अब तो एलिमिनेशन, अब तो ऐसा वो जमाना गया, ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा नहीं है. अभी भी आप देखिए लास्ट ईयर बोर्ड उठा करके उसमें भी ऐसा ही है, एक्सट्रीम वर्ड्स अभी भी गलत है. सो इस क्वेश्चन में भी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज एंड ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स. दो तरीके हैं. अगर एक तो पता है कि एक्सटर्नल डेट मसाला बॉन्ड्स में भी होता है, दैट इज रुपी डिनोमिनेटेड. नहीं पता है फिर भी ऑल ऑफ अगर, तो आप रिस्क ले सकते हैं, एंड बाय दैट यू विल बी एबल टू एलिमिनेट ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी एटलीस्ट. तो एटलीस्ट 50% आपने चांसेस अपने क्वेश्चन को करेक्ट करने की बढ़ा लिए, राइट. नाउ द थर्ड इज रूल ऑफ सिंक एंड कॉन्ट्रास्ट. सो रूल ऑफ सिंक एंड कॉन्ट्रास्ट ये होता है जनरली स्टेटमेंट क्वेश्चंस में ये एप्लीकेबल है. सो जैसे ये क्वेश्चन है, आई विल एक्सप्लेन टू द क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिक अबाउट द खारे कैमल, अ ब्रीड फाउंड इन इंडिया. सो खारे कैमल है मतलब समथिंग खारा, ओशन में अगर होता है, अगर खारा देखोगे आप तो, अगर कुछ ऐसा गेस करना तो. सो इट इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द खारे कैमल. यू सी statement, it is capable of swimming up to 3 kilometers in sea waters and it survives by grazing on mangroves. And C, it lives in a wild and cannot be domesticated. Can you see statement A और statement B of like in nature, right? So ये दोनों अगर आएगा, select the correct answer using code given below, तो A और B हमेशा एक साथ होना चाहिए. If it is not, then something problem is there. So A और B statement 1 2 एक साथ होना चाहिए. तो A करेक्ट हो सकता है अगर आप देखोगे कि 1 and 2 एक साथ, और D करेक्ट हो सकता है, ओके. और या तो दोनों एक साथ नहीं होंगे.
दोनों फिर एक साथ नहीं होगा, तो बी भी करेक्ट होगा, बट इट इज सी इज नॉट करेक्ट, सी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो आपने 33% चांसेस बढ़ा लिए अपने क्वेश्चन को करेक्ट करने के, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, और लिटिल बिट अगर आपको नॉलेज है इसकी भी, खारे खारा कहाँ होता है, ओशन में होता है अगर, और ओशन मतलब सी वाटर होता है, तो यस, तो गोइंग बाय दिस लॉजिक ओशन सी वाटर हो सकता है, कैमल है तो कैमल थोड़ा स्विम तो कर ही लेता है अगर आप देखोगे तो, और खारे कैमल है तो मतलब ऐसा कैमल जो खारे पानी में रहता होगा शायद, ऐसा कुछ हो, और अब जब पानी में जाएगा तो मैंग्रोव्स खाएगा, है ना, तो ये हो सकता है सर्वाइव, तो ए और बी लाइकली कि हाँ सही है। तो इस तरह से आप क्या कहते हैं कि ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं बी, नाउ यू आर लेफ्ट विद ए और डी, एटलीस्ट 50% चांसेस आपने बढ़ा लिए क्वेश्चन को करेक्ट करने के। नाउ एन अदर पैटर्न विच आई डिग आउट व्हेन आई रिविजिट पीवाईक्यू, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द कीवर्ड्स। अगर आपको कीवर्ड्स का मीनिंग पता है, अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा है और कॉमन parlance में यूज होता है, एंड इनफैक्ट यू शुड बी हैविंग द हैबिट ऑफ फाइंडिंग आउट द मीनिंग बिहाइंड कीवर्ड्स, जो भी जनरल पार्लेंस में यूज होता है। तो बंजारा जैसे एक टर्म था, क्वेश्चन द बंजारास ड्यूरिंग द मेटाइल पीरियड द इंडियन हिस्ट्री, क्या इंडिकेट करता है। तो अब जो बॉलीवुड मूवी बहुत देखता है, गाने भी बहुत उस टाइप के आते हैं, आपने देखा होगा, है ना, जैसे बंजारे का घर, क्या वो गाना था मुझे भूल गया मैं। ठीक है, तो वो बंजारा ट्राइब, तो आप देखो बंजारा क्या घुमंतू ट्राइब होती है जनरली अगर देखोगे तो, है ना, और जब घूम घूम के जब काम करते हैं एग्रीकल्चर तो होंगे नहीं, क्योंकि सेटल्ड वहाँ पे होते हैं एग्रीकल्चर लैंड के साथ, लैंड आपकी फिक्स जगह होगी, तो लैंड तो मूव करेगी नहीं आपकी अगर आप देखोगे। ठीक है, वीवर्स सेटल्ड होते हैं आप देखोगे तो, वेरियर्स स्टेट के साथ लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो हाँ थोड़ा कह सकता है कि वीवर्स सॉरी वेरियस कई स्टेट को लेकर फाइट नहीं करते हैं जनरली, एक ही स्टेट से लिंक रहते होंगे वो। ठीक है, नाउ सो आप ऑप्शन विल वी आर लेफ्ट विद ट्रेडर्स, तो यही है जो सामान को बेचते जगह जगह जाकर के हम। ठीक है, और बंजारा वही करता है अगर आप देखोगे तो। राइट, नाउ द गेम ऑफ एटाइमोलॉजी, एटाइमोलॉजी बेसिकली आप देखोगे कि ब्रेकिंग डाउन द की टर्म्स, तो संधिविच्छेद जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो अब देखो इसको कैसे करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ द सुंगा डायनेस्टी। राइट, सो अब क्वेश्चन का लव स्टोरी क्या होती है, यानी दो के बीच होती है, वन साइडेड नहीं होती है। अब ऐसे अगर देखो लॉजिक से तो हर कोई वन साइडेड लव स्टोरी करेगा जनरली, राइट, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक, जो जो लव स्टोरी जितनी है, लैला मजनू हो गया, रोमियो जूलियट हो गया, कपल का नाम होता है हमेशा अगर आप देखोगे तो जो बुक्स अगर आप ऑप्शन पढ़ो, स्वप्नवास दत्ता, मालविका मित्रा, मेघदूता, रत्नावली, तो रत्नावली नहीं होना चाहिए, मेघदूता नहीं होना चाहिए, स्वप्नवास दत्ता तो एक ही का नाम है अगर आप देखो, वासवदत्ता एक ही करेक्टर, मालविका समथिंग अग्निमित्रा प्लस अग्निमित्रा हो सकता है, तो ये आंसर सही हो सकता है। राइट, सो ऐसे हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब रही बात इस पोस्टर की, तो अगर कोई खाली टाइम बैठा हो तो ये वीडियो देख सकता है यूट्यूब में। राइट, नाउ द नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेमस फॉर सन टेम्पल, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो अगेन द गेम ऑफ एटाइमोलॉजी, समथिंग द मीनिंग, फाइंडिंग द मीनिंग बिहाइंड दैट टर्म एंड द गेम ऑफ एटाइमोलॉजी। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू, ओमकारेश्वर, ओमकार प्लस ईश्वर, ओमकार किससे रिलेटेड है, लॉर्ड शिवा से, है ना। अब अगर लॉर्ड शिवा, तो सन टेम्पल लॉर्ड शिवा कैसे रिलेटेड हो सकता है, अगर भगवान सन भगवान का टेम्पल है तो सिर्फ सन ही ना होंगे उधर पर जनरली देखोगे, मेन सेंट्रल थीम, है ना। अगर लॉर्ड शिवा उधर आ जाएंगे तो फिर सन कहाँ होंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन 3 इनकरेक्ट हो जाएगा, जैसे मुझे पता है ऑप्शन 3 इनकरेक्ट है, तो बी गया, सी गया और डी गया, वी आर लेफ्ट विद ओनली ए। सो मुझे नहीं पता अरसावली और अमरकंटक है कि नहीं, बट इस तरह से मैं आंसर राइट फाइंड आउट कर सकता हूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements with respect to the different types of assisted reproductive technologies. Now the statement A, during the in vitro fertilization method, the semen collected artificially introduced into the female uterus. Now look at the statement, in vitro. So in means inside, vitro means lab. So something happening inside the lab. What is fertilization? Fertilization क्या होता है, एग और स्पर्म मिलकर के जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, सो वो एक किसी इक्विपमेंट में होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए। राइट, तो अब यहाँ क्या करें, सीमेन कलेक्टेड आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फीमेल यूट्रस। सो फीमेल यूट्रस क्या नेचुरल प्लेस अगर हो जाएगा, तो लैब तो है ही नहीं फ्री हो अगर आप देखोगे तो गोइंग बाय दिस लॉजिक स्टेटमेंट ए गलत हो गया आप देखोगे तो। ठीक, और स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट 1 गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 गलत हो गया, तो ऑप्शन ए गया आपका, ऑप्शन बी गया आपका, ऑप्शन डी गया, सो नाउ यू आर लेफ्ट विद सी 2 and 3। right, so this is how you will find certain patterns. So I just want to tell you that the art of analysis, कैसे आप analysis करेंगे, so you just finish, let's say you are finishing Lakshmikant, and thereafter you will purchase OMR from the market and sit at 2 hours exam scenario and appear those 100 questions. Okay, after attempting those 100 questions, so you will analyze the questions, जो correct हैं fine, although अभी लिमिटेड टाइम एक मंथ बचा हुआ है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन गलत किए हैं
गो थ्रू इट. और सी, जनरली हम लोग 3 टाइप्स की ब्लंडर्स करते हैं. फर्स्ट वन इज द फैक्चुअल, सेकंड वन इज conceptual, third one is silly. Factual is all about facts related, so that means you do not have that much command as it is required, so you need to memorize or revise multiple times. Okay, and sometimes कई बार रिवाइज करने के बाद भी नहीं होता, तो ऐसे क्वेश्चन का एक लिस्ट बनाए एक पेपर में, सो दैट कि एग्जाम के 2-3 दिन पहले उसको आप रिवाइज कर सकें. ठीक है. नाउ कमिंग टू ऑप्शन बी, कॉन्सेप्चुअल. तो कॉन्सेप्चुअल अर्थ होती है जो हमें कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है. जनरली जैसे फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, राइट, और फंडामेंटल ड्यूटीज इन्फोर्सेबल क्यों नहीं बनाएगी, देयर इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में राज्यसभा में इतनी सीट्स किसी को एलोकेट की गई, देयर इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट टू मेक इट रिप्रेजेंटेटिव. ओके, एंड प्रोवाइड इक्वल पर्पस, इक्वल शेयर टू ऑल स्टेट्स. एक कॉन्सेप्ट है राज्यसभा का, अगर आप देखोगे. ठीक है. तो कंसेप्चुअल, सो कंसेप्चुअल का रीजन ये होता है कि कॉन्सेप्ट्स के अंडरस्टैंडिंग आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, वहां पर कई बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है. तो देयरफॉर गो बैक टू दैट कॉन्सेप्ट्स, लर्न फ्रॉम यूट्यूब और एनीवेयर जहां से पढ़ सके यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स का अंडरस्टैंडिंग. थर्ड वन इज सिली मिस्टेक. सिली मिस्टेक लाइक क्वेश्चन में पूछा था इनकरेक्ट और आपने करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करके टिक कर दिया. इसके लिए क्या है कि पेन को रख करके रीड कर सकते हैं हम लोग, सो दैट विल रिड्यूस द स्कोप ऑफ इट. सो ऐसे आपकी भी कई सारी सिली, जैसे बबल आप सही से नहीं भरते हैं. ठीक है. तो इन सब चीजों को फिक्स करने की जरूरत है. ये 3 टाइप्स की एरर होती हैं. और ड्यूरिंग एनालिसिस, ड्यूरिंग दोज की फिर उसमें जो अपने क्वेश्चन देखे उनका पैटर्न आइडेंटिफाई कीजिए. देखिए कैसे ऑप्शंस अरेंज करते हैं. ठीक है. कैसे लॉजिक सिंक एंड कॉन्ट्रास्ट लगता है, कैसे, तो वो आपको अपने आप ही आएगा हर बार. अगर बताऊं मैं, आप कितना ही बता दूं उतना आपको फील होगा नहीं. बट यू हैव टू रिविजिट द PYQ as many times as possible rather than running after these market mock test series. इससे उतना कोई फायदा होता नहीं है. बिकॉज माई सेल्फ when I gave the first prelims, I was running after these market mock test series and I failed in that very first prelims. And thereafter I realized that I did something blunder, and then I revisited PYQ and I solved last 25 years PYQ with proper exam, the way I am explaining you. And that is the last day when I appeared, when when I realized कि what was my mistake. So उसके बाद से मैंने कभी प्रीलिम्स के कोई मॉक टेस्ट लगाया नहीं जो मार्केट में मिलता है. हाँ, एग्जाम सिनारियो के लिए मैं 1-2 लगाता था विदाउट एनी डाउट, बट हमेशा मैं PYQ ही रिविजिट करता था. आंसर मैंने कभी मगअप किए नहीं, तो मेरे साथ तो कभी इशू रहा नहीं है कि मैंने आंसर मगअप कर ली. इन केस आपने अगर आंसर मगअप ही कर ली है तो फिर भी आई एक्सपेक्ट यू गो बैक एंड ट्राई टू एनालाइज द PYQ एंड द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. राइट. नाउ अगेन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको मैं भस्मासुर क्वेश्चन बोलता हूँ. तो जनरली एस्पिरेंट्स को ऐसे क्वेश्चन टच करने चाहिए जिसको वो खुद भस्म कर दें, राइट, कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें करेक्टली. बट कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना लाइक अपने आप को खत्म करना है. मैं ऐसे क्वेश्चन बोलता हूँ भस्मासुर क्वेश्चन. तो ऐसे क्वेश्चन है, रिसेंट मूवी टाइटल द मैन हु न्यू इन्फिनिटी इज बेस्ड ऑन द बायोग्राफी ऑफ. सो ये 4 नाम देखिए, एस रामानुजन, चंद्रशेखर, SN बोस एंड CV रामन. यू कैन सी 4 ऑप्शन एक ही टाइप के लग रहे हैं, लाइक धनिया पुदीना मेथी. यू कैन सी इट. ऐसे क्वेश्चन को प्रणाम करके मूव करना है. ठीक है. इनसे लड़ना नहीं है. लीव इट इफ यू डोंट नो इट. विद दिस, अगर आप PYQ से इसे एनालाइज करते हैं और इसके बाद बेसिक बुक्स में कमांड रखते हैं और जो मेन स्ट्रीम करंट अफेयर्स हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को सही से रीड करते हैं, नोट्स बनाए हैं आपने, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. एंड हैव फेथ ओवर योर कैपेबिलिटीज एंड गो विद द एटीट्यूड ऑफ डोमिनेटिंग दिस एग्जाम. लाइक मेरे पास हर चीज है, राइट, घुस के मारेंगे inside the classroom. Okay, with this, thank you all. We wish you all the best. And if you want to say something, you can comment in comment box. Let us know and also give me feedback regarding this. Thank you all.